চুলগুলো সময় পাচ্ছি না, একদম সময় পাচ্ছি না। আজ সকালবেলা বলেছিলাম দুপুর দুটোর সময় এখানে মোটামুটি যা অবস্থা ছিল তাতে মনে হলো যে দুপুর দুটো কেন, আমি কখন ফ্রি হব কিছু ভাবতেই পারছিলাম না। তাতেও এখন কোনো রকমে একটু ডেলিভারি হয়ে গেছে, কিছু আরো বাকি আছে, তো তাদের টাইমটাকে সামহাউ অ্যাডজাস্ট করে আবার 7টা থেকে 9টা করলাম। আর বাকি এই টাইমটা একটু লেজার পেলাম, কারণ সবারই একটু ব্রেক নেওয়ার দরকার ছিল। ভেতরে ছেলেমেয়েরা এখন লাঞ্চ আওয়ার চালাচ্ছে, তার কারণ তারা লাঞ্চ করার সময় পায়নি আজকে সকাল থেকে। প্রচুর ডেলিভারিজ ছিল, বাট একটা জিনিস খুব মজার, যেটা আমার যে অর্ডারটা নিয়ে সব থেকে বেশি চিন্তা করছিলাম, 1,500 পিসের অর্ডার, ওটা আজকে চলে গেছে। সো মানে মনে হচ্ছে যেন অনেকটা হালকা, অনেকটা বেটার ফিল করছি। তো আজকে তাই চলে আসলাম আবার তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আর বলতে মা ভুবনেশ্বরীর গল্প। तो तार आगे एक हिंदी इंट्रोडक्शन तो दिए ही नहीं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ आप सबके लिए माँ भुवनेश्वरी की कहानी लिए। आप सबको इंतजार था और मेरे पास 2-3 फोन्स भी आए हैं। तो मैंने कहा था जैसे कि आप लोगों को पहले 2 बजे का टाइम था, लेकिन उस समय नहीं आ पाई लाइव बिकॉज बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था। और प्लस आज मेरा जो मेजर ऑर्डर था जो वो कंप्लीट हुआ है। आज थोड़ा सा हल्का फील कर रही हूँ, नहीं तो रोज इतना ज्यादा टेंशन था। उसी के बीच में आप लोगों के लिए समय निकाल के मैं कहानियां सुना रही थी, बट आज थोड़ा हल्का फील कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि जो 1,500 पीस का ऑर्डर था वो गया। ओह गॉड, हम लोगों ने आफत ले लिया था शायद, बट देन इट्स like they are satisfied, it's gone and अच्छा लग रहा है। Hi Bodhi, thanks for watching, thanks अजय जी for watching। तो आज की বলবো গল্প মা ভুবনেশ্বরীর। তো প্রথম জেনে নি মা ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরী the word itself says যে সর্বভুবনের যে স্বামিনী, মানে সব মানে ইউনিভার্সের যে মানে মালকিন বা ইউনিভার্সটাকে যে চালাচ্ছে সেই ভুবনেশ্বরী, মানে আবার अगेन अनदर फॉर्म ऑफ आदिशक्ति। आदिशक्तिরই আর একটা নাম ভুবনেশ্বরী। তো ওনাকে চতুর্থ মহাবিদ্যা বা দশ মহাবিদ্যার চতুর্থ মহাবিদ্যা বলে আমরা মানি, এবং তার গল্প আজকে শোনাবো আমি। আর তার আগে তোমরা তাড়াতাড়ি চলে আসো, সো দ্যাট আমরা গল্পটার আমেজটা আর একটু মজার হয়ে যাক। সবাই এক জায়গায় বসে গল্প শুনলে অবভিয়াসলি তোমাদেরও যা যা কোয়ারিজ থাকবে সেগুলোকেও আনসার করতে পারবো, এবং আমারও ভালো লাগবে যে তোমাদের সঙ্গে এত সুন্দর একটা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলছি এবং সেটা তোমাদের কাছে গল্পের ছলে পৌঁছে যাচ্ছে। ওনাকে পারাশক্তিও বলা হয়। পারাশক্তি মানে আদিশক্তিরই আর একটা ফর্ম হচ্ছে পারাশক্তি, মানে যেখানে সমস্ত ভূমণ্ডল, যেখানে সমস্ত ইউনিভার্স এক জায়গায় এসে যেখান থেকে শক্তি নিচ্ছে সেই হচ্ছে আদিশক্তি বা পারাশক্তি। তো তোমরা যারা যারা এই প্রোগ্রামটা দেখো বা যাদের যাদের মনে হয় যে আমার কাছ থেকে গল্প শুনতে তোমাদের ভালো লাগছে, তাড়াতাড়ি চলে আসো আর তাড়াতাড়ি এসে এখানে বসে পড়ো, সো দ্যাট তোমরা মা ভুবনেশ্বরীর বিষয়ে কিছু জানতে পারো। কারণ আমার পক্ষেও সমস্তটা বলা সম্ভব নয়, এক, দ্বিতীয়ত আমিও হয়তো অনেক কিছু জানি না, আর তৃতীয় যতটুকু আমাদের স্ক্রিপচার্সে পাওয়া যাচ্ছে, যতটুকু পুরাণে পাওয়া যাচ্ছে, যতটুকু অথর্ব বেদ থেকে পাচ্ছি সেইখান থেকে তুলে এনে তোমাদের গল্পগুলো বলছি। তো সব সময় তো এটা পসিবল নয় যে আমি সবটা জানবো, বা আরো আদার কি কি স্ক্রিপচার্স আছে সব স্ক্রিপচার্স আমার পড়া নয়, এবং অনেক এরকম লেখা আছে যেগুলো বিদেশিরাও লিখেছেন এবং তাদের কাছেও অনেক রকম এরকম তথ্য আছে যেগুলো হয়তো আমার কাছে নেই। সো তোমাদের কাছে যদি এরকম কোনো তথ্য থাকে যেগুলো তোমরা শেয়ার করতে চাও, তো অবশ্যই আমাকে লিখে পাঠাও বা বলো, সো দ্যাট আমি তোমাদের কাছে আবার সেগুলো একটা নতুন ফর্মে পৌঁছে দিতে পারি। তো আদিশক্তির এই ফর্ম যাকে আমরা ভুবনেশ্বরী বলে থাকি, সে হচ্ছে সমস্ত ভুবনের
माने उन्हीं ओनर। तो जब हम आदि शक्ति की इस फॉर्म की बात करते हैं, when we talk about the etymology of such kind of a lady who is considered to be भुवनेश्वरी, मतलब पूरे यूनिवर्स की जो स्वामिनी है, उनके बारे में जब हम बात करते हैं, मतलब उनके अंडर में सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ नहीं है, पूरा एटमॉस्फेयर है, हेवन है एंड द गैलेक्सी है, तो सब कुछ उनके अंडर में है, उनके कंट्रोल में है और वो इस पूरी चीज को संभाल रही है। मतलब शी इज द अल्टीमेट लॉर्ड, शी इज द अल्टीमेट लॉर्ड एंड शी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ऐसी एक नारी या ऐसी एक शक्ति, ऐसी एक पराशक्ति जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, वो है माँ भुवनेश्वरी। तो जिन जिन को लगता है कि उनके पास टाइम है और उनको कुछ अच्छा सुनना है और इस नवरात्रि में माँ के उस स्वरूप के बारे में, उस तांत्रिक स्वरूप के बारे में जानना है जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि आज 4th डे है, आज चतुर्थी है और इस चतुर्थी में माँ की जो तांत्रिक फॉर्म में जो 4th फॉर्म है उसको ही हम लोग भुवनेश्वरी कहते हैं या क्वीन ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। तो ऐसी एक नारी के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। तो जिन जिन को और भी कुछ क्वेरीज हो सकता है काली को लेके, तारा को लेके या त्रिपुरा सुंदरी को लेके, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है, मैंने कुछ आप लोगों को बताया नहीं है, तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मैं जो भी आप लोगों के साथ खुद शेयर कर रही हूँ, अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी उसे शेयर करें। उससे क्या होगा कि लोगों को और भी ज्यादा लोगों को पता चलेगा अबाउट आवर कल्चर, अबाउट आवर स्क्रिप्चर्स, अबाउट भारतवर्ष, भारत भूमि, इस भारत भूमि के संतानों के बारे में, इस भारत भूमि की देव देवियों के बारे में, और पता चलेगा कि हम लोग कितने पुराने लोग हैं, कहाँ से हम लोग हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, और क्या क्या हम लोगों में खूबियां हैं और क्या क्या चीज ऐसी हैं जो कि हम में ही बसी हुई हैं। तो ये जो पराशक्ति है ये भी हम में ही है, ये भी हमारे अंतर आत्मा में है और सब कुछ जो भी इस विशाल काय यूनिवर्स में व्याप्त है वो सारा कुछ समेट के आप अपने अंदर में लिए भी बैठे हैं। तो ये है हमारी माँ भुवनेश्वरी। तो जब हम भुवनेश्वरी माँ को देखते हैं तो वो कैसी हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो যখন আমরা মা ভুবনেশ্বরীর দিকে তাকাই তখন আমাদের মনে হয় মা ভুবনেশ্বরীকে দেখতে কিরকম, তার সাজসজ্জা কিরকম, তার অস্ত্র শস্ত্র কি, তার চারপাশে কি আছে, এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে আসে এবং তার বিষয়ে কি কি গল্প আছে, তার বিষয়ে আমরা আরো জানতে চাই, আরো কি এমন জিনিস আছে যেটা আমাদের জানা নেই। তো মা বিষয়ে যখন আমরা জানতে চাই তখন আমরা যখন দেবী ভাগবতম পড়ি, মানে আমাদের যেরকম ভগবদ গীতা আছে সেরকম দেবী ভাগবতমও আছে। তো যখন এখানে আমরা পড়ি তখন দেখি যে ত্রিদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তারা নিজেদের বিষয়ে কিছু জানতে চাইছে, তারা নিজেদের বিষয়ে জানতে চাইছে যে তারা কে, বিকজ তারা তো চলে এসছে সংসারে, তারা চলে এসছে, তারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে, বাট তাদের অরিজিন কোথায় তারা কেউ বুঝতে পারছে না যে তারা কোথা থেকে। তো তখন তারা এই একটা নির্দেশের পথে, মানে তারা তখন যে গ্যালাক্সি আছে গ্যালাক্সির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজেদের অরিজিনকে খুঁজে। যখন আমাদের কারোর মেমোরি লস হয় বা যখন আমরা নিজেরা বুঝতে পারি না যে আমরা কে বা আমাদের মা বাবার কোনো ঠিকানা থাকে না, তখন আমরা খুব বিচলিত হই, তাই না? তখন আমাদের মনে হয় যে আমরা অরফান, আমাদের কেউ নেই, মা বাবা নেই, কেউ নেই, কোনো আত্মীয় পরিজন নেই, তখন নিজেকে ভীষণ একা মনে হয়। তো সেরকমই এই ত্রিদেবেরও মনে হচ্ছিল যে তারা একা। তো তারা যেহেতু একা, তারা কোথা থেকে খুঁজে পাবে যে তাদের অরিজিন কোথায়? সেই জন্য তারা নিজের নিজের রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এবং তারা রথ নিয়ে কোথায় ঘুরছে? গ্যালাক্সিতে, আকাশগঙ্গায় ঘুরছে। ঘুরে ঘুরে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছে যে কে তাদের অধিষ্ঠাত্রী বা কে তাদেরকে এই ভূমণ্ডলে নিয়ে আসলো।
তখন তারা চতুর্দিকে খুঁজছে এবং একটি শব্দ তাদেরকে বারবার আকৃষ্ট করছে, সেটা হচ্ছে ওঙ্কার। এই ওঙ্কারের যে ধ্বনি, এই ওঙ্কারের ধ্বনির মধ্যে দিয়ে তখন তারা যাওয়া শুরু করলো, যে দিকটা থেকে ধ্বনিটা আসছে সেই দিকে তারা এগোনো শুরু করলো। तो जब पृथ्वी बना या जब पूरा यूनिवर्स बन रहा था, उस समय त्रिदेवों का जन्म हुआ और ये त्रिदेव खोजने लगे कि कौन है जिससे उन्होंने जन्म लिया, जिससे वो इस धरा पे भूमिष्ठ हुए, या जिससे उनका मतलब इस लोक में आना हुआ। तो वो लोग खोजते खोजते अपने रथों को लेकर मिल्की वे या गैलेक्सी में घूमने लगे। और जब वो घूमने लगे तो उस समय उनको एक ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ी और उसी ध्वनि की तरफ वो आकर्षित होकर बढ़ते चले गए। और जैसे जैसे वो उस ध्वनि की तरफ आगे जा रहे थे, उनको एक और विशाल शून्यता की तरफ वो ध्वनि लेती चली जा रही थी। मतलब जहां से वो लोग गए थे वो एक शून्य था और जहां को वो लोग जा रहे थे वो भी शून्य था। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हर चीज का जो शुरू है वो भी शून्य से है और हम लोगों को उसी शून्य में जाकर ही मिलना है। तो ये जो इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना सब कुछ चाहने, हु इज दिस मिस्टर वीजू? प्लीज डोंट मेक वीडियो कॉल्स। मैं नाम लेने को बाध्य हो रही हूँ, आप क्यों वीडियो कॉल कर रहे हैं? मैं तो कंटिन्यूअस आपके सामने ही बात कर रही हूँ ना, तो आप वीडियो कॉल मत करें प्लीज। मैं नाम लेने के लिए बाध्य हो रही हूँ, प्लीज डोंट मेक वीडियो कॉल्स। हाय मधुमिता, I don't know what has gone wrong with this generation. They keep on making video calls. बार बार बोलने पे भी आप लोग नहीं सुनते हैं कि वीडियो कॉल मत करिए। और जब कि एक इवेंट चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके बीच में आप लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं। इतना बार मैंने आप लोगों को बोला है कि वीडियो कॉल्स मत करिए, और मैं देखती हूँ जब भी प्रोग्राम लाइव हो रहा है तभी आप लोग आ जाते हैं वीडियो कॉल करने के लिए। What is the problem behind? तो ये जो त्रिदेवास हैं, ये अपने ओंकार के पीछे भाग रहे थे और उनको शून्यता से शून्यता की तरफ ही लिए जा रहा था ये ओंकार नाद। तो चलते जब ये लोग बिल्कुल थक गए तीनों, तब ये लोग एक ऐसे दरवाजे के सामने पहुंचे जहां पे बहुत ऐश्वर्य था और बहुत कुछ था वहां पे, लेकिन सब एक माया की तरह था। मतलब कभी वो दिखता था और कभी वो गायब हो जाता था। তো যখন এই ত্রিদেব হাঁপিয়ে গেলেন এবং হাঁটতে বা চারিটে করে যেতে যখন হাঁপিয়ে গেলেন, তখন ওনারা দেখতে পেলেন একটা খুব সুন্দর রাজ্য, কিন্তু সেটা একটা মায়ার মতন রাজ্য। মানে কিরকম? মানে কখনো আছে, কখনো বিলুপ্ত, কখনো মনে হচ্ছে এই তো সামনে গেলেই ধরা দেবে, কখনো আবার মনে হচ্ছে সেটা নেই। এটা আমাদের সঙ্গেও হয়, মিরেজ ফরমেশন। তো ঠিক সেম জিনিসটাই ওদের সঙ্গেও হচ্ছিল। তো হতে হতে দেখলো যে একটা সত্যিকারেরই একটা কোথাও একটা গেট আছে, যেখানে পাহারা দিচ্ছে সব ভৈরবরা, যেখানে পাহারা দিচ্ছে মাতৃকাজরা, ক্ষেত্রপালেরা এবং দিকপালেরা। তো এই পুরো জায়গাটা ঘিরে, আর ওখানে খুব সুন্দর একটা মানে পরিবেশ তৈরি হয়ে রয়েছে। এবং তারপরেই ওনার যা দর্শন পেলেন সেটা হচ্ছে একটা বিশালকায় চেহারার নারী, একটি বিশালকায় চেহারার নারী, যার ভীষণ সুন্দর একটা লাল বর্ণ, রেডিশ তার স্কিন টোন, তার সুন্দর হরিণের মতন চোখ, এবং তার কপালে সুন্দর একটা ত্রিনয়ন আছে, এবং উনি ধ্যানস্থ বসে আছেন। তখন ওনারা জানার চেষ্টা করলেন উনি কে। তখন দিকপালেরা বললেন উনি ভুবনেশ্বরী। বললো কি ভুবনেশ্বরী? তখন বললেন যে উনি কিন্তু এই সমস্ত ইউনিভার্সের রানী, উনি কিন্তু এই পুরো ইউনিভার্সটাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই কারণে উনি এই ইউনিভার্সটাকে ওনার হাত দিয়েই উনি চালনা করেন। তো
তো এটা শোনার পরে ওনারা তো মানে তিনজনেই খুব হতবাক হলেন, বললেন তাহলে আমরা কারা? বললেন আপনাদেরও সৃষ্টি উনি কোনো একটা মহৎ কাজের জন্য করেছেন। তখন বললো আমরা কি মহৎ কাজ করতে পারি, আমরা তো নিজেদের পরিচয়ই পরিচিত নই। তখন মা ভুবনেশ্বরী নিজের ধ্যান ভঙ্গ হলো ওনার, এবং উনি দেখেই বললেন বাহ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনজনেই চলে এসেছে, তাহলে এবার আমি কাজগুলোকে সুসম্পন্ন করি। তখন উনি বিষ্ণুকে বললেন তোমাকে আমি এই সমস্ত জগৎ দিলাম, তুমি এর পালনহার হবে। বিষ্ণু বলল ঠিক আছে, কিন্তু পালনহার হতে গেলে তো মা আমার একজন সহচরী দরকার যে আমাকে সাহায্য করবে। বলল হ্যাঁ, আমি তোমাকে আমারই স্বরূপের আরেকটি রূপ তোমাকে আমি প্রদান করলাম, এটা লক্ষ্মী, এবং তুমি যেভাবে তুমি সংসারের চালনা করবে ঠিক সেইভাবেই কিন্তু উনি তোমার সহযোগিতা করে তোমাকে কিন্তু উনি সবসময় সমৃদ্ধ রাখবে, এনরিচড রাখবে। তো নারায়ণ সর্বপ্রথম পেলেন মা লক্ষ্মীকে। তারপরে তার মানে এই গল্পটি কিন্তু আমাদের সমুদ্র মন্থনেরও আগের গল্প। এবার দ্বিতীয়টা হচ্ছে ব্রহ্মার দিকে ওনার দৃষ্টি গেল, যার 4টে মাথা। উনি দেখে বললেন যে তোমার তো প্রচুর বুদ্ধি, প্রচুর বিদ্যা, কিন্তু সেই বিদ্যা তুমি নিজের মধ্যে ধরে রেখেছো, কিন্তু তুমি দিতে পারছো না মানুষকে, এবং সেই বিদ্যাটা দিতে গেলে তোমাকে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা হতে হবে, তোমাকে সৃষ্টি করতে হবে, নতুন নতুন সৃজন করতে হবে, এবং সেই সৃজন করার দরুন তোমার এই বুদ্ধিমত্তা, তোমার এই জ্ঞান যে পৌঁছে দেবে মানুষের মাঝখানে, সেই দেবীকে আমি তোমায় প্রদান করলাম বলে তার হাতে সরস্বতীকে তুলে দিল। এবং সরস্বতী তখন থেকেই কিন্তু ব্রহ্মার ঘরণী হলেন। হ্যাঁ, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা জেনেছি ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর একটা মতাবিরোধ ছিল, এবং সেখানে অনেক রকম অন্য নতুন গল্প পরে উঠে আসবে, সেগুলো আমি অন্য কোনো সময় আপনাদের শোনাবো। আর সেই কারণেই হয়তো ব্রহ্মার পুজো হয় না। আর ঠিক তারপরে উনি মহেশের দিকে তাকিয়ে বললেন তুমি যেহেতু ভোলা, তুমি যেহেতু তোমার মনে কোনো রকম কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব কিছুই নেই, তুমি সারাক্ষণ নিজের মধ্যেই বিলীন থাকো, তাই তোমাকে সঙ্গ দিতে পারবো একমাত্র আমি। তাই আমার যেটা সব থেকে স্ট্রংগেস্ট স্বরূপ, যেই রূপে আমি সবসময় মানুষের কাছে বিদ্যমান থাকবো, মানুষ যেই রূপকে দেখে সবসময় মা বলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে, সেই রূপ নিয়ে আমি তোমার পাশে থাকবো। এবং এই যে লীলা, লীলা মানে এই যে জীবনের লীলা, মানে একটা জীবন শুরু হচ্ছে সেটা তো শেষও হতে হবে, মানে ধ্বংস হতে হবে, সেই ধ্বংস লীলায় তুমি আমার সহচর হবে। তো সেখান থেকেই ভুবনেশ্বরীর আবির্ভাব, এবং ভুবনেশ্বরীর মা তখন শিবের পাশে এসে শিবের গৃহিণী হলেন, গৌরী রূপে, উমা রূপে, সতী রূপে। বারবার উনি এসেছেন, এবং বারবার উনি নতুন নতুন সিরিজের গল্প নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য, নতুন নতুন ফর্মে উনি এসেছেন, কখনো হিমালয় পুত্রী হয়ে, কখনো যারা মাছ ধরে मछुआरिंदर बहू है। तो जब हम इनके बारे में जानना चाहते हैं तो पता चलता है कि माँ भुवनेश्वरी जब त्रिदेवों को देखती हैं तो सबसे पहले विष्णु को वो उनकी घरनी प्रदान करती हैं, उनकी जो स्त्री है उनको प्रदान करती हैं, और उनको देती हैं माता लक्ष्मी। महालक्ष्मी रूप में वो विष्णु के साथ चल पड़ती हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी को मिलता है सरस्वती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के पास बहुत ज्ञान था, बहुत बुद्धि थी, और उनका 4 सर था, मतलब इतना उतना ज्ञान था। तो उस ज्ञान की जो सीमा थी वो अपरिसीम थी, और उस अपरिसीम ज्ञान को बांटने के लिए उनको सृजन करना था। और जब वो सृजन करते तो उस सृजन के माध्यम से, उस नई कृति के माध्यम से माँ सरस्वती उनमें ज्ञान भर देती। तो इसीलिए उनको मिल गई माँ सरस्वती। और आखिरी में बचे थे महादेव शिव। तो उनको माँ ने कहा क्योंकि तुम भोला महेश हो, तुमको तो कुछ समझ में है नहीं, पृथ्वी के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें लौकिकता के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए तो मुझे ही तुम्हारे साथ चलना होगा। तो इसीलिए तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनके हमेशा ही मैं रहूंगी। तो इसीलिए माँ दुर्गा के रूप में, माँ उमा के रूप में
माँ पार्वती के रूप में, सती के रूप में जब जब जिस जिस रूप का प्रयोजन हुआ, माँ ने उस रूप का धारण कर माँ भुवनेश्वरी ने साथ दिया किसका? महादेव का। तो ये थी कहानी माँ भुवनेश्वरी की। अब चले आते हैं माँ भुवनेश्वरी के पास क्या क्या अस्त्र रहता है, माँ का साज कैसा है, माँ कैसी दिखती हैं। तो माँ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके सर पर एक 3 लहरी मुकुट है। 3 लहरी मुकुट मतलब एक चौड़ा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा। देखने में वो कलश जैसा लगता है। क्यों कलश जैसा लगता है? कलश ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप चाहें तो घड़ा भर सकते हैं, घड़ा को खाली रख सकते हैं। तो ऐसे एक चीज माँ ने अपने सर पे धारण कर रखा है, जो कि सिर्फ ज्ञान का नहीं, सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि समूचे इमोशंस का भंडार है। तो ऐसी एक माँ, और उनका जो नैन है वो बिल्कुल हिरन की नैनों जैसा है। उनका चेहरा गोलाकार है। उन्होंने नाक में नथ पहना हुआ है, जो नथ हम लोग देखते हैं माँ दुर्गा का भी लगा हुआ रहता है ना, वैसा एक नथ पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भूमंडल गोल है, सब कुछ गोल है, और उन्होंने उस गोलाकार चीज को अपनी नासिका में धारण कर रखा है, जिससे एक लड़ी निकल के उनके बालों में लटकता है। क्यों? ताकि पूरे भूमंडल का कंट्रोल उनके नासिका से लेकर उनके पूरे मुखमंडल पे ही उसका तेज और उसका प्रभाव हमेशा से बना रहता है। तो ऐसी है हमारी भुवनेश्वरी माँ। और उनका चेहरा भी थोड़ा स्थूल है, थोड़ा सा वो थोड़ा मोटी दिखती है, एकदम पतली दुबली है नहीं, वो बड़ा ही भरा हुआ शरीर है। और उनका जो स्तन का पार्ट है वो खुला रहता है, और नीचे में उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका स्किन कलर भी रेडिश टोन में है, और वो बहुत ही एक अलग किस्म की उनमें एक आभा है। और पूरा सर के बीच से उनका त्रिनयन है जो कि खुला हुआ है, और वो एक बहुत ही सौम्य मूर्ति में बैठी हुई है। उनके हाथ में क्या है? अब आते हैं, उनके बाएं हाथ में एक गन्ने का पेड़ है। उनके बाएं हाथ में गन्ने का पेड़ है, दाहिने हाथ में एक तोता बैठा हुआ है, और दाहिने हाथ के ऊपर जो हाथ है उसमें शंख है, और बाएं हाथ के ऊपर एक त्रिशूल है। तो ऐसी है माँ भुवनेश्वरी। तो जब भी आप लोगों को कभी भी ऐसा कोई माँ का स्वरूप दिखे तो आप तो अब से समझ जाएंगे कि वो माँ भुवनेश्वरी है। तो যখন माँ ভুবনেশ্বরী কে আমরা দেখি তখন দেখি যে মা ভুবনেশ্বরীর হাতে 4 রকম জিনিস আছে। ডান দিকের ওপরের হাতে রয়েছে একটা শঙ্খ, আর নিচের হাতে রয়েছে একটি তোতা বসে। এই দিকের যে বাঁ দিকের হাতটি, বাঁ দিকের হাতের ওপর পোর্শনে রয়েছে একটা ত্রিশূল, আর নিচে কিন্তু রয়েছে একটা আখের গাছ। তার মানে উনি শস্য উৎপাদন করতেন, হয়তো সেই শস্য দিয়ে হয়তো মানুষের পেট ভরতেন। সেই কারণে সেই শস্যটাকে সিম্বলাইজ করা হয়েছে সেই যুগে সিই। ইট ইজ নট ইভেন বিফোর ক্রাইস্ট, বিসি নয়, সিই। ইট ইজ আ কমন এরা। তো সেই কমন এরার নারী যারা খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল, যাদের প্রতাপে পুরো মানে বিশ্ব বা ভূমণ্ডল আলোকিত থাকতো, সেরম একজন নারী ছিলেন কিন্তু মা ভুবনেশ্বরী, যে আজকে আমাদের কাছে পূজিত। এবং যখন আমরা মা ভুবনেশ্বরীর বিষয়ে পড়ি তখন আমাদের তো জানতে হবে যে মা ভুবনেশ্বরীর কাছ থেকে আমরা কি কি পেতে পারি। তো এই মা ভুবনেশ্বরী কিন্তু জ্ঞান এবং আমাদের শস্য সম্পদার একজন বিশাল বড় মানে অধিষ্ঠাত্রী, বা ওনার কাছ থেকে এই জিনিসগুলো চাইলে কিন্তু পাওয়া যায়। তার মানে আপনার গৃহে কোনোদিনই অন্নাভাব হবে না, কারণ উনি লক্ষ্মী স্বরূপা, সরস্বতী স্বরূপা দুটোই, এবং উনি অভয় প্রদান করেন। তো এরকম একজন নারী যে এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, যার এত শক্তি, যার কাছে এত পাওয়ার্স আছে, তাকে আমরা যখনই পুজো করব তখন আমরা কিভাবে পুজো করব? মায়ের সব থেকে পছন্দের ফুল কি? খুব অদ্ভুত ভাবে মায়ের পছন্দের ফুল হচ্ছে অপরাজিত।
अपराजिता जो फूलटा है, अपराजिता जो फ्लावर है ब्लू कलर का होता है, जिसे हम लोग कुछ पी आई डोंट नो सम पी प्लांट टाइप का ही वो एक फ्लावर होता है, और उसको हम लोग अपराजिता कहते हैं, हिंदी में अपराजिता कहते हैं। एग्जैक्ट क्या नाम है आई डोंट रिमेम्बर। तो वो फूल उनको बहुत प्रिय है, और इसीलिए माँ हमेशा ही, जब भी आप माँ को कुछ अर्घ कर रहे हैं तो इस फ्लावर का जरूर यूज करें। ये बहुत ही अच्छा लगता है उनको, ये बहुत प्रिय फूल है उनको, जबकि उनका ऊपर का पोर्शन खुला हुआ है और नीचे में उन्होंने लाल साड़ी पहना हुआ है और काफी गहने उन्होंने पहन रखा है। शी वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल लेडी, और ये भी कोई ड्राविड लेडी ही थी, क्योंकि इनके जो गहने हम लोगों को देखने को मिलते हैं उस पे काफी नक्काशी मिलती है। तो इससे पता चलता है कि अभी भी साउथ इंडिया में जो ज्वेलरी का काम होता है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से बिल्कुल अलग है। तो उसी तरह की नक्काशी हम लोगों को मिलती है उनके गहनों में। तो वो मूल प्रकृति है, इसलिए उनके इर्द गिर्द जो भी सामान हम लोगों को देखने को मिलता है, या जो भी प्रॉप्स देखने को मिलते हैं, प्रॉप्स ही कहूंगी, आज के युग में प्रॉप्स कहना इजी रहता है, तो जो भी प्रॉप्स उनके आसपास दिखता है वो इज क्वाइट क्लोज टू द नेचर, और वो खुद दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की एक छवि मूर्ति है। तो इसीलिए जब भी हम लोग उनको देखते हैं तो उनको देखने से ही पता चलता है कि उनमें तीनों देवियां विद्यमान है। तो ये जो भुवनेश्वरी माँ है, भुवनेश्वरी माँ अलग है थोड़ा सा बाकी माओं से, और उनका जो प्रताप है, उनको क्यों हम लोग सोचते हैं कि वो एक तांत्रिक माँ है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको इनके मंत्र के बारे में बता दूं, क्योंकि और इनके मंत्र का क्या यूज है और क्यों यूज किया जाता है वो, और कितनी बार इनका जाप होता है, वो सब मैं आपको पहले बता दूं। तो इससे आपको पता चलेगा कि माँ का जो योग है, या किस समय माँ की पूजा करनी चाहिए। ऐसे तो आप कभी भी माँ को याद कर सकते हैं, कभी भी माँ की पूजा कर सकते हैं, যে কোনো সময় মায়ের পুজো করা যায়। কিন্তু এটার মেইন যেটা মা ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র বা মা ভুবনেশ্বরীর পাঠ, তখন সবথেকে বেশি কার্যকরী যদি আপনি দিনের বেলা, সকালবেলা, মানে যেটা আমাদের পূজার অ্যাকচুয়াল সময়, মানে সকালবেলা ধরুন 7:30 8টার মধ্যে যদি মা ভুবনেশ্বরীর পুজো করা যায় সেটা খুব লাভদায়ক। আর সেই সময় অপরাজিতা ফুলগুলো বোধহয় বেশি ফ্রেশ থাকে। তো সেই মন্ত্র দিয়ে মা ভুবনেশ্বরী মন্ত্র পাঠ করে এবং মাকে সেই ফুলগুলো দিয়ে মাকে ইনফ্লুয়েন্স করা যায়, মাকে নিজের কাছে আনা যায়, মাকে বোঝানো যায় যে মা আমি তোমার এই রূপে মুগ্ধ, তোমার গুণে মুগ্ধ, আর তোমাকে আমি সামনে পেতে চাই, তোমার দ্বারা আমি আমার কার্য সিদ্ধি করতে চাই। তো কি কার্য আমরা সিদ্ধি করতে পারি मायर द्वारा? तो माँ से हमको क्या मिल सकता है? माँ से हमको ज्ञान मिल सकता है, और हम सस्य संपदा में जो हम लोगों का जो क्रॉप्स है उससे हम लोग और एनरिच कर सकते हैं। तो जो लोग फार्मिंग लाइन में हैं, जो लोग फार्मिंग का काम करते हैं, या जिनको नेचर से कुछ काम लेके काम करना पड़ता है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। और वो इस मंत्र का जाप 108 बार सुबह, यानी कि सुबह एकदम 7 से 8 के बीच में करें। ये बहुत शुभ समय भी है मंत्र जाप करने के लिए माँ का, और ये बहुत ही मतलब आसान सा एक मंत्र है। आम श्रीम ह्रीम क्लीम, क्लीम ह्रीम श्रीम क्रोम। आम श्रीम ह्रीम क्लीम, क्लीम ह्रीम श्रीम कोम। ये मंत्र अगर आप 108 बार करते हैं, যে মন্ত্রটা আমি বললাম, আম শ্রীম হিম ক্লিম ক্লিম হ্রিম শ্রীম ক্রোম, এই মন্ত্রটা যদি 108 বার আপনারা করেন, আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন যে আপনাদের আশেপাশের যে গ্রিনারি সেটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। সেখান থেকে আপনাদের যেগুলো অক্সিজেন দেওয়ার মতন যেসব গাছ আছে, সেই গাছগুলো আরো বেশি কথা বলছে আপনার সঙ্গে। সেই গাছের থেকেও আপনি অনেক ধরনের লাভ পাচ্ছেন, এবং
আপনি শস্য সম্পদায় এনরিচড হচ্ছেন। तो जो लोग इस मंत्र का जाप करेंगे उनकी शस्य संपदा जो है वो बढ़ेगी, उनके आसपास की ग्रीनरी बढ़ेगी, क्योंकि वो माँ भुवनेश्वरी है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। आपको जिनको हृदय रोग से जो पीड़ित रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। जिनको एस्थमा की बीमारी है, हृदय रोग की बीमारी है, वो लोग अगर माँ भुवनेश्वरी का जाप करें तो उनके चारों तरफ ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। तो ये एक नेचुरल उपाय है, बिना डॉक्टर को पैसे दिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, डॉक्टर के पास की एक छोटा सा मंत्र जाप करके अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे। मैं एक चीज और बोल रही हूँ, ये जितने भी तांत्रिक प्रथा में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो कि तंत्र साधक हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, इनके पास अगर आप इसकी रेमेडी खोजेंगे तो वो पहले आपके लिए जाप करने के बजाय अपने लिए जाप करेंगे, और इससे फल ये होगा कि आप उनकी तरफ आकृष्ट होंगे ज्यादा, ना कि आप माँ की तरफ आकृष्ट होंगे। इसलिए माँ का जाप करिए, माँ को याद करिए और माँ को डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने पास बुला लीजिए। तो माँ ही आपकी रक्षा कर सकती है ना, तो क्यों हम किसी दूसरे के तीसरे के चक्कर में आए, जबकि माँ खुद डायरेक्ट हो सकती हैं। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम और अच्छा हो सकता है, आपकी स्किल बढ़ सकती है माँ से कम्युनिकेट करने की। तो जरूर कम्युनिकेट करें थ्रू एक छोटा सा मंत्र, आम श्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम ह्रीम श्रीम क्रोम। बहुत इजी मंत्र है, और इसका जितना आप जाप करोगे उतना ही आपको अंदर से स्वस्थ महसूस करना चालू कर दोगे। आपके हृदय रोग संबंधी, आपके आसपास के वातावरण संबंधी, जिन लोगों को मेंटल टेंशन ज्यादा रहता है, आसपास के लोगों में कहीं पे किसी को कोई दूसरा व्यक्ति मेंटल रोग से पीड़ित है और उसका भी आप इलाज कर रहे हो या उसके साथ आपको रहना पड़ रहा है, उस समय अगर आप इस चीज का जाप करोगे, दोनों हाथ को कान से ऐसे ढककर और कंटिन्यूअस अगर माँ का नाम का जाप करते हो इस तरह से कि आपके पास किसी और की कोई वाणी नहीं आए, कि आपके पास और कुछ सुनाई आपको ना पड़े, सिर्फ माँ का चित्त आपके आंखों के सामने हो और माँ की नाम आपके जुबान पर हो। आप करके देखिए, ये एक ऐसा जाप है जिससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगोगे। तो बस आज इतना ही। আর এই জাপটা করলে আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন কতটা সুস্থ আপনি আছেন মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে। কারণ যখন অক্সিজেন চারপাশে থাকে তখন আমরা অনেক বেশি নিজেদেরকে হালকা ফিল করি। তো সেই জন্য দু কানে এরম ভাবে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে মায়ের এই জাপ করলে অটোমেটিক্যালি আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন যে আপনারা কত ভালো আছেন। তো আজকে আর বেশি কিছু বলবো না। সবার আজকে চতুর্থী, সবাই আজকে বেরানোর চেষ্টা করছে, স্পেশালি বেঙ্গলে তো চলছে, তাই চতুর্দিকে রাস্তায় জ্যাম, লোকজন বেরিয়ে পড়েছে ঠাকুর দেখতে। বিভিন্ন প্যান্ডেলে বিভিন্ন আর্টিস্টের বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর কাজ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন আর্টিস্টরা নিজেদের মনের যে প্রতিচ্ছবি সেখান থেকে মায়ের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেছে। আমি সকল শিল্পীকে আমার তরফ থেকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক শ্রদ্ধা, অনেক অনেক প্রণাম যে তোমরা এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলো, এই সুন্দর করে ফেলো এই পৃথিবীটাকে। इतनी सुंदरता से आप लोग सजाते हैं। एक फेस्टिवल है, ये एक स्ट्रीट फेस्टिवल है जिसको आप लोग इतना सुंदर कर देते हैं अपनी कला से, अपनी कृति से। उसके लिए आप लोगों को शत कोटि प्रणाम। स्वयं विश्वकर्मा जी आप सब में विद्यमान है, स्वयं माँ का आशीर्वाद आपके सर पर है। आप सबको बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा प्यार आप लोगों को मिलने वाला है। इस दुर्गा पूजा में भी आप लोगों ने जिस तरह से अपनी कलाकृति का एक उदाहरण हम सबके सामने रखा है और जिस तरह से लोग जा रहे हैं, उससे ना ही सिर्फ आप लोगों की सम्मान वृद्धि हो रही है, बट सबके हृदय में आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार बटोरे वो वापस आ रहे हैं। इतना सारा प्यार जो आप सबको मिल रहा है वो सिर्फ आपकी ही कुशलता के कारण, आपकी ही कला कुशली के कारण आप लोगों को मिल रहा है। तो
तो ऐसे ही लोगों का मनोरंजन करते रहिए, प्यार बटोरते रहिए, प्यार देते रहिए। তো সবাই তোমরা ভালো থেকো, আনন্দে থেকো। আজ চতুর্থী, প্রচুর লোক আজকে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়েছে এবং সমস্ত আর্টিস্ট বন্ধুকে আমার অনেক 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 ভালোবাসা, অনেক শ্রদ্ধা, অনেক প্রণাম। তার কারণ তোমরা না থাকলে হয়তো আমরা মায়ের অনেক স্বরূপের বিষয়ে জানতেই পারতাম না বা আগ্রহী হয়ে জানার চেষ্টাও করতাম না। নমস্কার।